So students, this was the life history of a silk moth, how a silk is reared from silkworms. You studied that a female silk moth lays hundreds of eggs at a time, and the eggs are stored carefully on strips or cloth or paper and sold to silkworm farmers. The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity, and they follow all the steps about which you have learned right now in this video. We skipped the last step. लास्ट स्टेप थोड़ा सा हमारा रह गया था. उसमें क्या होता है? अ पाइल ऑफ cocoon is used for obtaining silk fibers. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to the steam. एंड देखिए ये कोकून्स हैं, है ना, उनको बॉयल किया जाता है या सन हीट में रख दिया जाता है. एंड द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट and the process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. So we skipped the last step in this video, the last step, that is reeling the silk. So the process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. So reeling is done in special machines which unwinds the threads or fibers of the silk from the cocoon, and silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers. तो इसके लिए मैं एक वीडियो आपको सेंड करूँगी जिसमें सारी प्रोसेस दी गई है कि हाउ सिल्क इज़ प्रोसेस्ड. सिल्क फैब्रिक इज़ मेड फ्रॉम सिल्क फाइबर. तो सिल्क फाइबर कैसे बनता है वो तो आपको पता चल गया, लेकिन सिल्क फैब्रिक कैसे बनता है सिल्क फाइबर से वो आप अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले आप एक एक्टिविटी करेंगे. देखिए आपकी बुक में एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.5. 6 क्लास में भी आपने ये एक्टिविटी की थी, लेकिन 6 क्लास में आपने ये प्लांट फाइबर के साथ की थी. इस बार आप एनिमल फाइबर के साथ करेंगे, दैट इज़ silk. What you have to do, collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. No need to paste in your scrapbook, you can paste it in your notebook. You can find them in a tailor shop, पर टेलर शॉप पे आप नहीं जाओगे. आपके घर में अगर पीसेस अवेलेबल हैं ओल्ड क्लोथ्स के, सिल्क क्लोथ्स के, तो वहाँ से आप एक पीस लेके अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं. पर मेक श्योर कि वो वेस्ट पीसेस होने चाहिए, वेस्ट क्लोथ्स होने चाहिए. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और any other person in your house to identify the types of silk such as mulberry silk, tussar silk, eri silk, muga silk. There are different types of silk. Then compare the texture of these silks with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fibers. Try and collect pictures of different moths whose caterpillar provide the various types of सिल्क. तो अगर अभी ये पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ. यू कैन नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ्स. वन मोर एक्टिविटी इज देयर, एक्टिविटी 3.6. what you have to do, take an artificial or synthetic silk thread, rayon is artificial silk, and a pure silk thread. Burn these threads carefully and find out any difference in the smell while burning. You have to do this by your own. अपने आप करोगे और मुझे बताओगे कि क्या डिफरेंस है. जब आप बर्न करते हो, एक पीस लेना है अपने आर्टिफिशियल सिल्क का और एक लेना है आपने रेयॉन का, सॉरी प्योर सिल्क का, और दोनों थ्रेड्स को आपने जला के देखना है. ऑल्सो बर्न वूलन फाइबर एंड फाइंड आउट कि बर्निंग स्मेल आर्टिफिशियल सिल्क की कैसी है, प्योर सिल्क की कैसी है, या वुलन फाइबर की कैसी है. टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी. ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं आप. ये देखिए, कट आउट द पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. ये देखिए लास्ट पेज पे दिए हैं लाइफ हिस्ट्री. मेल एंड फीमेल silk moths, eggs on mulberry leaves, silkworm, cocoon with developing moth.
आपने क्या करना है, आप बुक तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी और प्रिंटर भी सबके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप ये पिक्चर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं। इन पिक्चर्स को ड्रॉ करिए, कलर करिए और एक कार्डबोर्ड पे इसको पेस्ट कर दीजिए और छोटे छोटे कार्डबोर्ड्स बना लीजिए। देन jumble them and try and arrange the stages in the correct sequence in a cyclic form. Whoever does it fastest win। तो आप अपने घर में अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहन के साथ, जो भी आपके घर में मेंबर्स हैं उनके साथ ये खेल सकते हैं, है ना। So you may also describe the life history in your own words. Write it down in your scrapbook. So you have to write down the life history of silkworm in your notebook, not scrapbook. Scrapbook अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नोटबुक में ही ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो गया। मैं आपको कुछ होम असाइनमेंट्स भेज रही हूँ, कुछ होमवर्क भेज रही हूँ जो आपको घर के इमीडिएटली मुझे भेजना है। तो कल तक मुझे ये सबमिट करवा दीजिए, तो हम अपना फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, और मुझे बता दीजिए कब मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लूँ। अगर कर लेना है तो भी यस में मुझे रिस्पांस भेज दीजिए, और अगर आपको टाइम चाहिए 1 या 2 दिन चाहिए तब भी आप मुझे बता दीजिए।